Hello friends, today we will see Newton-Raphson method. See, after seeing Gauss-Seidel iterative method, our second method is Newton-Raphson method, which is far more better than Gauss-Seidel method. There are so many advantages of Newton-Raphson method over Gauss-Seidel method. Let's see one by one. You know your Newton-Raphson method is iterative method, you know that, but the number of iterations required in Newton-Raphson method is less than Gauss-Seidel method. Secondly, in Newton-Raphson method, we will convert the set of nonlinear equation into a set of linear equation by Taylor series expansion. Okay, this is the second important thing in Newton-Raphson method. And third will be, we will neglect the higher order terms in Taylor series expansion. This is the second point in Newton-Raphson method. So, for understanding of Newton-Raphson method, let's consider n number of nonlinear equations. So this n number of nonlinear equation is, I am going to tell you one. See, let us suppose I have equation 1, f y is equal to f. So in this equation, if you have n number of variables, so we are writing it like this: x1, x2 up to xn. This is just the generalization of a equation. So आपके पास इस तरीके से हो सकता है, योर y1 इज इक्वल टू साइन x1 स्क्वायर प्लस x2. तो इसमें दो वेरिएबल्स हैं, सो यहाँ पे x1 और x2 तक ही आपका फंक्शन जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक नॉर्मल इक्वेशन आपको एज ए एग्जांपल शो करी. इस तरीके से हमारे पास n नंबर ऑफ अगर इक्वेशंस हैं, सो x1 x2 अप टू x1. Take this system, take this as a equation number 43. Now, for understanding Newton-Raphson method, first you will take an initial estimate for the solution vector. As you know that x1, x2 up to xn are the solution vector. So see, let us suppose if you have x1 square plus x2 is equal to 5. Similarly, if you have x1 plus 3, x2 is equal to 6. So when you solve these two equations, you will get the value of x1 and the value of x2. It means these x1 and x2 are the solutions. Therefore, we are assuming that the initial estimation for the solution vector is x1 0, x2 0 up to xn 0. So this 0 sign represents the initial solutions. ठीक. Now, अब न्यूटन-राफसन मेथड के लिए हम लोगों को सबसे पहले एक करेक्शन चाहिए होगा कि सपोज आपके पास इनिशियल सॉल्यूशंस ये हैं, और न्यूटन-राफसन मेथड के बाद अगर हमारे पास अगर हम मान के चलते हैं कि इन सॉल्यूशंस में, इनिशियल सॉल्यूशंस में ये करेक्शन रिक्वायर्ड है, x1 डेल्टा x2 अप टू डेल्टा xn आर द करेक्शन रिक्वायर्ड. ठीक है, तो जब ये करेक्शन रिक्वायर्ड है तो आपकी जो इक्वेशन नंबर 43 है वो किस तरीके से बन जाएगी. तो इक्वेशन नंबर 43 मीन्स कि ये जो x1 है वो क्या है, x1 0 दैट इज इनिशियल सॉल्यूशन विच यू एज्यूम, प्लस इसमें करेक्शन ऐड हो जाएगा विच इज डेल्टा x1. इसी तरीके से हर x1 में, x2 में अप टू xn में करेक्शन ऐड हो जाएगा. तो आप क्या करेंगे, xn तक करेक्शन ऐड कर लेंगे, तो आपकी जो 43rd इक्वेशन है वो इस तरीके से क्रिएट हो जाएगी विच इज़ इक्वेशन नंबर 44. नाउ सी, इक्वेशन नंबर 43 को हम एक्सपेंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ टेलर सीरीज, और इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि जो हायर ऑर्डर होगा उस हायर ऑर्डर को नेगलेक्ट करेंगे. तो देखिए, आपको अगर पहली इक्वेशन हम ले लेते हैं, दिस इज द इक्वेशन नंबर x1. इस इक्वेशन में देखिए, योर x1 मीन्स टेलर सीरीज एक्सपांशन हुआ है, तो सबसे पहले नॉर्मल फंक्शन होगा. इसमें x1 0, x2 0 कॉमा अप टू x1 0 तक होगा. उसके बाद सबसे पहले आप लेंगे डेल्टा x1 और f1 फंक्शन का डेरिवेटिव ले लेंगे, किसके रेस्पेक्ट में, x1 के रेस्पेक्ट में. ठीक है, सिमिलरली आप डेल्टा x2 का लेंगे विद रिस्पेक्ट टू डेल्टा x2, लेकिन फंक्शन होगा f1. ओके, इसी तरीके से आप फॉर y2, y3 अप टू yn. ठीक है, सो
इसमें हमने हायर ऑर्डर टर्म को नेगलेक्ट किया है. वी आर neglecting phi 1 which is a higher order term. So after Taylor series expression we will write the equation like this, expanded form, like this one. You can see this in this equation as same equation, this one. Similarly for y1 up to y2. अब हमें ये जो इक्वेशन नंबर 45 है इसको इसकी मैट्रिक्स फॉर्म में हमें इसको कन्वर्ट कर देना है, जिसके लिए हम ये जो f1 है इसको लेफ्ट हैंड साइड लेके जाएंगे और बाकी का जो ये वाला टर्म है इसको राइट हैंड साइड ही रहने देंगे. ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जब हम इसको लेफ्ट हैंड साइड लेके गए तो आपकी इक्वेशन ये बन के आ गई और बाकी इक्वेशन राइट हैंड साइड ली. तो जो डेरिवेटिव के टर्म्स हैं उसकी एक मैट्रिक्स बना दी और जो डेल्टा की टर्म है उसकी अपनी एक अलग मैट्रिक्स बना दी इसको. सो दिस column matrix is D, this column matrix is D, this column matrix is J, and this column matrix is R. So D is equal to JR. So J is the Jacobian matrix. It is a Jacobian matrix for the function Fi and R. Okay. Now our main motive is to find out delta x1, delta x2 and up to delta xn. तो अगर हमें ये फाइंड आउट करना है इट मीन्स आपको जो ये वाली मैट्रिक्स है इसमें आर फाइंड आउट करना होगा विच इज़ इक्वल टू जे इनवर्स इनटू डी. ओके सो सेम मैथमेटिकल इक्वेशंस हमने यहाँ पे देखिए. डी इज इक्वल टू जे पी एंड आर इज इक्वल टू जे इनवर्स डी. पी आपका क्या है, नंबर ऑफ इटरेशंस है. ठीक है, इसका ध्यान रखना है, इट इज़ नंबर ऑफ इटरेशंस. सो जब आप इस वाले इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपके डेल्टा x1, डेल्टा x2 अप टू डेल्टा xn फाइंड आउट हो जाएंगे. मीन्स जो करेक्शन आपने लिए थे वो आपके फाइंड आउट हो जाएंगे. ठीक है, जब करेक्शन फाइंड आउट हो जाएंगे तो आप उस करेक्शन को ऐड कर लोगे अपने x1 वैल्यू में, तो वहाँ से आपकी फाइनल वैल्यू x1 सॉल्यूशन निकल के आ जाएगा. इसी तरीके से x2 सॉल्यूशन, इसी तरीके से x3 सॉल्यूशन, सारे सॉल्यूशन निकल के आ जाएंगे. दिस इज इक्वेशन नंबर 49. ओके, सो इस तरीके से आप x1, x2, x3, x4 अप टू x1 फाइंड आउट कर लेंगे आफ्टर फर्स्ट इटरेशन. सो अगर आपको सेकंड इटरेशन के लिए जाना है तो ये जो फर्स्ट इटरेशन के बाद जो x1, x2, x3 की वैल्यू आएगी इन वैल्यूज़ का यूज़ करेंगे हम फॉर सेकंड इटरेशन के लिए. सो द प्रोसेस इज रिपीटेड अंटिल टू सक्सेसिव वैल्यू फॉर ईच xi डिफर ओनली बाय अ स्पेसिफिक टॉलरेंस. इसका मतलब ये है कि सपोज आपके पास पहले इनिशियल वैल्यू थी x1 0, बाद में आपके पास जो वैल्यू आ गई वो आ गई x1. ठीक, सो x11 माइनस x10 के जो डिफरेंस होना चाहिए वो एक स्पेसिफिक टॉलरेंस से कम होना चाहिए. अगर ऐसा हो जाता है तो हमारा सॉल्यूशन कन्वर्ज हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा. ठीक है, सो बाय अ स्पेसिफिक टॉलरेंस. सो इन दिस जे कैन बी evaluated in each iteration, may be evaluated only once provided are changing slowly. ठीक है, तो इसमें जो जैकोबियन मैट्रिक्स होती है वो नॉर्मली कांस्टेंट रहती है. ठीक है, तो इसको हम हर केस में लगभग जे ही लेते हैं. बिकॉज ऑफ द क्वाड्रेटिक कन्वर्जेंस न्यूटन मेथड इज मैथमेटिकली सुपीरियर टू गॉस सीडल मेथड एंड इज लेस प्रोन टू डाइवर्जेंस विद इल कंडीशन प्रॉब्लम्स. ठीक है, तो क्वाड्रेटिक कन्वर्जेंस बेसिकली इट इज़ अ मैथमेटिकल टर्म. बिकॉज ऑफ द क्वाड्रेटिक कन्वर्जेंस द रेट ऑफ कन्वर्जेंस इन न्यूटन-रॉप्सन मेथड इज फास्ट. और न्यूटन-रॉप्सन मेथड में डाइवर्जेंस मीन्स डाइवर्जेंस लोड फ्लो में जो डाइवर्जेंस होता है उसके चांसेस भी बहुत कम हो जाते हैं. ठीक है ना, तो क्वाड्रेटिक कन्वर्जेंस का मतलब होता है कि जो एरर निकल के आया है वो जो एरर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एरर जो निकल के आया है उसका जो स्क्वायर होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा अगली इटरेशन के एरर के लिए. इसलिए जो रेट ऑफ कन्वर्जन होता है वो फास्ट हो जाता है इसका. ठीक है, क्वाड्रेटिक कन्वर्जेंस आपको और जानना है तो आप लोग मैथमेटिक्स में देख सकते हैं व्हाट डू यू मीन बाय क्वाड्रेटिक कन्वर्जेंस. क्वाड्रेटिक कन्वर्जेंस मीन्स कि अगर आपकी पहली इटरेशन में कोई एरर निकल के आया है तो अगर आप उसका स्क्वायर कर लेंगे तो वो जो स्क्वायर है वो दूसरे इटरेशन के लिए आ जाएगा, जिस वजह से आपका जो रेट ऑफ कन्वर्जेंस है वो इंक्रीज हो जाएगा. ओके, सो
Thank you very much. I hope you like this video.